Hello guys, I am Kunal Parmar and with me is Janish Soni and we are here to present another episode of All Fingers and Thumbs. And today's episode is going to be very interesting because we are going to talk about a topic which revolves around everywhere, but no one knows everything about it. Nothing Yes. about it. Sorry, that's what I want to say. Yes. And that is economics. So Janish will carry on and talk about our guest and give us more information about it. Yes. We see that every day, economics, is a branch of study which affects every single person, right? Whether you are an artist, whether you are an entrepreneur, you are a house husband or a housewife, it affects everyone. We get to see a lot, and we understand a lot of things based on how economics works, right? How commodities are working, how products and services are managed, but we don't understand the concept, the branch of study that we are talking about, that economics. We are unable to comprehend that, right? Because the textbooks are written in a way that the technical language cannot be comprehended by common people like us, right? तो और उसमें भी ऐसा होता है कि उसके अंदर भी दो ब्रांचेस होते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जो मैक्रो होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशंस, अलग अलग कंट्रीज कैसे एक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कैसे बिजनेस करती है, कैसे ट्रेड रिलेशंस होते हैं, वो सब पे फोकस करता है। माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे मतलब इन हाउस जो हम डेली बेसिस पर जो हम डील करते हैं चीजों से, उसके ऊपर फोकस करता है। तो ये सारी चीजें इतनी इन डेप्थ है कि इनको समझना बहुत मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर लैंग्वेज भी उसमें थोड़ी डिफिकल्ट डाल दो। तो इसलिए हमने सोचा कि आज का जो एपिसोड है वो ऐसा रखते हैं कि जिसके अंदर हम अलग अलग कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में थोड़ा समझ पाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा समझ पाए। और इसलिए हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका प्रोफेशन जो है वो शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट सिम्बासिस पुणे। शी इज ऑल्सो परस्यूइंग हर PhD in macroeconomics, specializing in international trade. So her specialty is international trade. So we can get more in-depth knowledge of how trade works and how things work on a larger scale. Or her name is Vidhi Kalra. She also is a YouTube creator, and she teaches basic concepts of economics in 5 or less than 5 minutes through her YouTube channel and through her Instagram. So let's welcome her and get to know more about economics, what it is and how it works on a day-to-day basis. Hi, how are you? Good, good. Fine. So this is Krunal, Good, good. and I'm Janish, as you know already. Yes, I have been talking to you. Hi, Krunal. So welcome, Yeah, Vidhi, to our podcast. Thank you for joining today. So thank first you. of all, we were talking about economics and how difficult it is to understand for common people like us, right? Because we are not studying that subject, and it's quite difficult because of the language that is being used everywhere, right? In textbooks, in news channels, in every single debate that is out there about economics, that the language is quite difficult to understand. So can you give us some sort of basic understanding of what economics is and how it affects us, as a common people, on a day-to-day basis? So basically, economics, I don't think, maybe I might sound biased, but if you call it difficult, I don't think economics is difficult because economics is there everywhere. I mean, it's a part of our daily life because it deals with money. I wouldn't give a, authentic definition given by any great economist that would make it sound very cliche. But I would just say that economics is all about money. It's all about business. It's all about industry. Just take economics like that because economics is present everywhere. As a rich person, or maybe as someone who is not earning that much, everyone has to deal with some sort of economics every day. Like when you go and buy something, right? So when you study the first chapter of economics, everyone who is acquainted with economics knows that probably that you are taught about scarcity. That why do we make a choice? Because there is scarcity of resources, right? If there were resources were unlimited, we wouldn't have to make a choice. There wouldn't have been a problem at all. This problem of scarcity of resources makes us question
this point. And see, daily, if you have 1,000 rupees in your hand, just a very common example, and you go out, you can obviously do some part of thing, right? You can't do everything possible with 1,000 rupees. So basically, you are taking an economic decision every day, unknowingly or knowingly, you are doing that. So that is what I feel. And now I feel economics has a great scope. I mean, it's not like I am demeaning other subjects, but if you see back 10 years back or maybe 20 years back when our parents were studying, at that point of time, economics was considered something, a subject which was only aligned with commerce students. But now I've seen people who are doing physics, chemistry, and they've taken economics as an optional subject. Like economics की importance अब लोगों को पता चल रही है. I feel like that. And now they know that there is a wider scope of economics in future, and this subject is very much upcoming. That is why. So that is what I feel about economics. तो ये बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि हम आपके क्लास में बैठे हैं और आप हमें explain कर रहे हो concepts. अरे ऐसा if I'm going like way too much ऐसा कुछ देखो, because I want people to understand what I'm talking, not like it should go above their heads. तो अगर ऐसा कुछ complicated लगता है, अभी तक तो लेमन लैंग्वेज में ही है. हाँ, ऐसा लग रहा है. हाँ, वो ऐसे इसलिए उस पॉइंट से ही बोला कि ऐसा लग रहा है कि आत्माराम भिड़े के एक लेक्चर में बैठे हैं और Is that your economics teacher? No, it's from तारक मेहता का उल्टा चश्मा. अच्छा, oh, I don't watch it. Okay, so हाँ, वैसा मतलब I'm trying my best की, because you told me you are from a science background, no? Yes. So अगर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कोई मुझसे बात करेगा तो for 2 minutes I'll be lost. ऐसा नहीं है, मैंने 10 तक पढ़ी है, but then after that, okay, I've lost touch with it. तो मैं ऐसा चाहती थी इकोनॉमिक्स में लोगों को ऐसा ना लगे बहुत टफ है, समथिंग लाइक दैट. इट्स लाइक डेली लाइफ में हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स को यूज करते हैं. अब आप न्यूज ही उठा के देख लो, अब न्यूज में कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री टर्म्स नहीं यूज होते, पर इकोनॉमिक्स के जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब क्या है? इकोनॉमिक्स टर्म्स ही है ना. अरे बट वो आपने जो बोला ना वही बोल रहा हूँ कि जैसे लोग कभी भी ऐसे न्यूज़पेपर भी पलटते हैं, ऐसा कुछ भी देखते हैं तो हर बार ऐसे लिखा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये फिजिकल डेफिसिट और ये सब. तो ऐसे ये और एक बार पढ़ते हैं तब याद होता है कि ओके ऐसा होता है, पर जब दूसरी बार पढ़ते हैं ना ये तो पढ़ा हुआ था पर अभी याद नहीं क्या है. एग्जैक्टली, ये सब टर्म्स, इतने सारी टर्मिनोलॉजी ना मुझे भी नहीं पता. मैं भी पढ़ के लाइक यू कम टू नो अबाउट इट, राइट? सब लोग सीख ही रहे हैं. That's what I feel. तो मतलब इकोनॉमिस्ट की भी वैसी हालत हो गई ना जैसे प्रोग्रामर्स की है कि हमें कोडिंग के लिए भी हर बार इंटरनेट पे सर्च करना ही पड़ता है कि क्या कौन से सेगमेंट में क्या करना है. और मुझे ओवरफ्लो देखना ही पड़ता है. हाँ वही. और मुझे इकोनॉमिक्स के मतलब आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है जो ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट सब्जेक्ट, राइट? बाकी सब में क्या है कि बाकी सब बहुत ही कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं कि अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले या फिर कोई आर्ट फील्ड की कुछ भी ले अगर, तो उसमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी के मतलब उसके आसपास ही रिवॉल्व करता है. लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो आर्टिस्ट को भी अफेक्ट करेगा, हाउस होल्ड को भी अफेक्ट करेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस भी इकोनॉमिक्स के बेस पे बनते हैं, और फिर मार्केट भी चलता है. वैल्यू ऑफ मनी कुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन दिस ब्रांच ऑफ स्टडी. मुझे भी मतलब मैंने पूरी बुक लेकर उसमें से पढ़ाई की ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूं. अरे योर क्वेश्चन, आई वाज लाइक अरे बहुत रिसर्च किया है इतने सारे क्वेश्चंस. गुड रिसर्च आई वुड से, काफी अच्छा इन डेप्थ रिसर्च किया था कि मैं ही डर गई थी क्वेश्चंस पढ़ के. हाँ मतलब मैंने वीडियोस देखे, फिर हमने बुक्स में से थोड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तभी वो स्कैरसिटी, और क्योंकि मुझे तब पता चला कि सबसे बेसिक थिंग होता है कि स्कैरसिटी मतलब उसी हिसाब से जो रिसोर्स बहुत ही सभी के पास लिमिटेड होते हैं उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालना और उसमें से बाकी सारी चीजों को रिसोर्सेज को मैनेज करना. तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के जो भी लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उन सबको इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही चाहिए, या फिर मार्केट पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ना ही चाहिए. आप देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, यूपीएससी है, यूजीसी नेट है, या कोई भी, इवन मुझे लगता है सीए के एग्जाम में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स कुछ पॉइंट तक आ ही जाता है हर एग्जाम में. आप कभी भी एमबीए का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, इकोनॉमिक के रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्वियसली नॉट एकदम इको वाले नहीं आएंगे उसमें, बट थोड़े बहुत आ जाते हैं, जनरल नॉलेज के टर्म्स में आ जाते हैं. सो इसीलिए मुझे लगता है यार कि इकोनॉमिक्स का काफी स्कोप है उस वे में, राइट. तो अभी जो हर बार एक चीज रहती है
हाँ, कि आपने ये बोला ना कैसे क्वेश्चंस रहते हैं और ये सब, हाँ, तो हर हम्म बार हम लोग है ना, कभी भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड पढ़ते हैं ना, तो हम एक ही चीज याद रखते हैं कि नोबेल प्राइज किसने जीता है, बस, और सिर्फ उनका नाम पता होता है कि भाई ये टाइम पे इसने जीता था, ये टाइम पे इसने जीता, और वो भी सिर्फ वो केबीसी नॉलेज की नाम पता है, बट क्या पता किया है, वो नहीं पता होता। क्या हाँ, नहीं तो पता। हाँ, वो तो ऐसे आप अपनी ज्यादातर देखो, अब मुझसे अगर आप कोई दूसरी जॉनर कोई दूसरे सब्जेक्ट का पूछ लो तो मुझे कम नॉलेज होगी, मुझे इको की ज्यादा है बिकॉज वो मेरा अपना इंटरेस्ट और हाँ, सब्जेक्ट है। तो वही यस है यस कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हो ना, दैट इज देयर। हम्म। यस। तो अभी अभी जो आपने बताया ना कि जैसे कृणाल ने भी मेंशन किया कि न्यूज़पेपर्स में हम्म सभी जगह पर हम हम्म जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें, ये हम्म सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। तो हम्म मतलब मुझे मुझे ये जानना है कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है ना, क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजीज बहुत ही स्पेसिफिक चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन हम्म सबसे सबसे हाउ टू मेक सेंस ऑफ ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज, मतलब उसको समझे कैसे कि अगर कोई कंट्री के बारे में, क्योंकि सभी कंट्रीज के पास रिसोर्सेज अलग अलग है, सभी की पॉपुलेशन अलग है, डेंसिटी अलग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, राइट? सिर्फ हम एक हम्म नंबर देख के डिसाइड नहीं कर पाते कि ये कंट्री वेदर इट इज डूइंग बेटर और वर्स, राइट? तो कैसे, हाउ टू मेक अ हम्म। सेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी एंड ऑल दिस स्टफ? देखो एक कॉमन चीज है, कीप रीडिंग, रीडिंग से तो आएगा ही। आप जब रीड ही नहीं करोगे तो आपको ये टर्म्स ही नहीं पता चलेंगे। अच्छा मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड अब टिल डेट मुझे आज भी न्यूज़पेपर पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है, आई फील वेरी बोर्ड रीडिंग अ न्यूज़पेपर। बट देन आई फाउंड अदर मीन्स एज एन इकोनॉमिस्ट एंड ऑफ कोर्स नाउ एज अ प्रोफेसर आई नीड टू बी अपडेटेड। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कुछ पूछेंगे तो मुझे थोड़ा बहुत करंट नॉलेज भी चाहिए है, जनरल नॉलेज दैट वे। तो एप्स डाल लो आप अपने फोन में, आप अपना टाइम्स ऑफ इंडिया ऐप है, लाइव मिनट ऐप है, उन लोग छोटे छोटे आर्टिकल्स निकालते हैं, उसमें दे एक्सप्लेन एंड दे एक्सप्लेन रियली वेल। ऐसी बात नहीं है कि आपको अगर लेमैन हो आप समझ नहीं पाओगे। और फिर ऐसी बात है टर्म्स की, जैसे ऑफकोर्स फ्यू टर्म, जैसे अब एनबीएफसी टर्म है, अब आपको शायद उसका मीनिंग नहीं पता होगा, आप गूगल करो। क्यों आप ऐसे क्यों वेट करते हो कि आपको कोई आके समझाए? लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं भी अक्सर कई नए टर्म्स आते हैं, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स रिलेटेड, कोई भी नया टर्म अगर रियल लाइफ में मतलब आता है, गूगल करो, सर्च करो, व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप देयर। मुझे ये लगता है कि अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो ऐसी बात नहीं, आप यू विल अंडरस्टैंड। मैंने अपने चैनल में ही, सिंस यू नो आई हैव अ चैनल, मैंने एक दो वीडियोस ऐसी बनाई हैं जिसमें मैंने जनरल टर्म्स के बारे में बोला था इकोनॉमिक्स के। दैट वीडियो वाज लाइक फॉर एवरीवन जो इको नहीं भी पढ़ रहे। तो ऐसे मुझे लगता है हाँ, थोड़ा बहुत यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको थोड़ा डेली नॉलेज बता रहे हैं। और ऐसे किसी को भी देखो इकोनॉमिक्स डेप्थ में पढ़ने का शौक नहीं है, अब आप क्यों पढ़ोगे, आपका जब सब्जेक्ट ही नहीं है, आपको क्यों शौक क्यों है? बट जो आपको कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, एज यू सेड जीडीपी इन्फ्लेशन, दो वर्ड्स है जो हम हर रोज ही अगर न्यूज खोले तो आ ही जाता है वो। सो उसके बारे में पढ़ने के लिए फॉलो सच पीपल हु कैन मेक इकोनॉमिक इजी, मेक इट इंटरेस्टिंग, और रीड अबाउट इट। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जाके रिसर्च पेपर्स पढ़ लो, बट आर्टिकल्स पढ़ो, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ो, उसमें मजा भी आएगा एंड योर जनरल नॉलेज विल आल्सो इंक्रीज। व्हाट दैट इज व्हाट आई फील। लेकिन what I was curious about is these terms represent something, right? मैं उस एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ कि जैसे अभी अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ या पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा, इंडिया से हाँ, हाँ ओवरटुक इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट? हाँ तो हाँ वो सारी चीजें जो है, उसके उससे सेंस कैसे बनाए? मुझे ये तो है कि हम अगर कुछ भी चीजें टर्मिनोलॉजीज को गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो उसके बारे में इन डेप्थ टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा, राइट? लेकिन उससे ये थोड़ी पता चलेगा कि कंट्री, कोई भी कंट्री किस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर उससे हाँ, ग्लोबल उनका पॉलिटिक्स में, एनालिसिस क्या है। हाँ, वैसे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मैं मेरा बेसिकली उन लोगों को कैसे आप समझोगे ये टर्म्स को, हाँ, इज दैट हाँ, व्हाट यू आर ट्राइंग टू यस, से? यस, तो समझने के लिए पहले टर्म्स को जानना पड़ेगा। जब आप टर्म्स को समझ जाओ, थोड़ा बहुत रीड करके आपको आइडिया तो लगेगा। देखो एकदम जैसे अगर आई डोंट नो हाउ, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है, अगर इको में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सब टर्म्स समझ नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स आप नहीं, रीड करो। हम कितने लोग हैं जो रीड करके समझ जाते हैं। अभी मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने स्टोरी शेयर की है कि इंडिया इज नाउ बिलो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एक्चुअली आधे लोग को रीजन पता है उसका, आई डोंट थिंक किसी को भी रीजन पता होगा। नहीं मतलब पता। ऑब्वियसली कुछ लोग को पता होगा, बट मैक्सिमम पीपल आर जस्ट शेयरिंग, क्योंकि इंडिया कहीं भी, वैसे भी इंडियंस को शौक है ना, कहीं भी हाँ, इंडिया ब्लैक करती है तो हमें नीचे, उसको हाँ, दिखाने
ऑफ करना होता है, जैसे और कंट्रीज करते हैं कि अपनी अच्छी चीजें दिखाते हैं। मैं देखती हूँ इंडियंस को ऐसा कुछ बुरा परफॉर्म करे, इंडिया नंबर 1 फॉर कोविड केसेस, वो जरूर शेयर करेंगे। कभी कोई रिकवरी रेट नहीं शेयर करेगा, कभी कुछ अच्छी चीज नहीं शेयर करते। बहुत कम लोग होते हैं, बिकॉज ज्यादातर लोग क्या एंटी गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है उस वे में लोग दिखाना चाहते हैं कि देखो गवर्नमेंट कितना अंडर परफॉर्म कर रही है, और इसलिए ऐसी चीजें शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है इफ यू आर शेयरिंग समथिंग, यू शुड रीड अबाउट इट, यू शुड नो अबाउट इट बिफोर जस्ट यूजलेसली पुटिंग थिंग्स अक्रॉस टू एवरीवन एल्स। दूसरे बंदे को भी जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं, अरे अच्छा इंडिया तो बांग्लादेश से भी बुरा हो गया, इंडिया तो पाकिस्तान से भी पीछे हो गया, वापस उठा के सब रीपोस्ट कर दो, मतलब स्टोरी पे डाल दो। तो थोड़ा जान लो। एंड is that like, could I answer your question? Was that what you are trying to ask कि कैसे समझोगे? आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, follow interesting resources, वो मैं कह रही हूँ, उससे आप थोड़ा बहुत जान पाओगे। But I want to know this about this Bangladesh thing. How what to make sense of this number? What did I say? अभी मैं कहती हूँ जाके पढ़ो। आप जो लोग ये वीडियो देखेंगे सब लोग जाके पढ़ो, पहले जाके पढ़ो फिर जाके पूछो मुझसे। you should read about it. Of course इंडिया की, क्योंकि देखो कोविड की वजह से हम सब जानते हैं जीडीपी बहुत गिर गई है। एंड अभी लास्ट ईयर मुझे याद है मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस पे, -23% हो गई थी। इतनी बुरी तो तभी भी नहीं हुई थी जब 2008 फॉल हुआ था, जब 1930s का डिप्रेशन हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन, तभी भी इंडिया का इतना बुरा हाल नहीं हुआ था जितना लास्ट ईयर हुआ था। तो उस टाइम तो जीडीपी की मतलब जैसे बहुत ही -23। तो अब तो आप सोचो, अभी तो सब लोग कोविड केसेस पे ही फोकस कर रहे थे, इकोनॉमी पे तो आ ही नहीं रहे थे। अभी तो डेथ्स और वो सब इतना था कि इस साल इकोनॉमी वाला पार्ट थोड़ा इग्नोर्ड गया। अगर आप उठाओगे तो और पीछे चली जाएगी, पर ऑब्वियसली इकोनॉमी तो जाएगी। जब आप लॉकडाउन में होगे तो कंट्री, अब हमारे केसेस ज्यादा थे, अब केसेस को कर्व करने का तरीका ही लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से हम लोग पीछे हो गए। बट इट्स नॉट लाइक वी विल फॉरएवर बी बिहाइंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। हम लोग जब वापस स्टार्ट करेंगे, हम लोग उनसे बहुत आगे इकोनॉमी है हमारी इकोनॉमी। हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? करना है तो कुछ अच्छी एडवांस कंट्री से करना चाहिए हमें। तो ठीक है अभी के लिए पीछे हो गए, अभी हमारा जीडीपी कम हो गया क्योंकि हम लॉकडाउन में थे। तो अब जब खुलेगा, इकोनॉमी ओपन अप होगी, वापस सब कुछ नॉर्मलाइज होगा, तो ऑफ कोर्स आई फील कि हम लोग उनसे बहुत जल्दी आगे निकलेंगे। तो इतना उस चीज पे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ऑनेस्टली मैंने तो उस चीज पे इतना ध्यान भी नहीं दिया कि क्या रे इंडिया पीछे हो गया बांग्लादेश से। ठीक है आज पीछे हुआ, कल वो पीछे, इतने टाइम वो हमसे पीछे थे, वो बात तो किसी ने नहीं उठाई। सो दैट्स व्हाट आई फील। एक्चुअली मैंने ये पढ़ा कि क्या होता है कि बांग्लादेश जैसी कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आती है ना, तो उनके लिए इंटरनेशनल ट्रेड्स के जो रूल्स जो होते हैं वो बहुत इतने टाइट नहीं होते उनके लिए। उनके लिए बहुत सारी चीजें इजी होती है। तो उनके लिए अभी वो कैटेगरी में ग्रो करना इजी है कंपेयर टू कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना, क्योंकि हमारा स्केल थोड़ा बड़ा है, हमारी इकोनॉमी थोड़ी बड़ी है, तो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस अलग होंगे अगर हम अलग अलग कंट्रीज से डील करते हैं, राइट। तो वो भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये नंबर थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। और मैंने और जो आपने बोला ना कि हम इंडियंस को ऐसी हमारा ऑब्सेशन है कि कोई भी, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इन जनरल भी, जैसे बिल गेट्स फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ बिल गेट्स, राइट, कि जब तक वो अच्छा कर रहा था इतने सालों से, तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही उसके डिवोर्स के बारे में वो गॉसिप स्टार्ट हुई, तब से लोगों को बिल गेट्स में इंटरेस्ट ज्यादा आ गया। इंटरेस्ट हो गया, तब से मीम्स बनना शुरू हो गए उसके। हाँ वही तो एक्चुअली ऐसा है कि स्टेटस ड्रिवन सोसाइटीज जितनी भी है ना, लगभग पूरा एशिया से स्टेटस ड्रिवन है, राइट। तो जहां पर स्टेटस मैटर करता है वेल्थ से, तो उसकी वजह से ये हो जाता है कि सभी को सब में पोक करना अच्छा लगता है, कि हमें जानना होता है कि क्या हमारा बाय डिफॉल्ट वो इंक्लिनेशन होता है ना, वो नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीजों पर होता है। नेगेटिव, और आप देखो नेगेटिव न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, पॉजिटिव न्यूज तब जाती है, नेगेटिव कुछ भी हुए। हाँ जब कोविड केसेस ही थे, इतने नेगेटिव लोग न्यूज डाल रहे थे। ठीक है मैं मानती हूँ बहुत नेगेटिविटी थी भी। अगर हम 1-2 महीना पहले देखें, अप्रैल में वो रियली 2 टफ मंथ्स फॉर आई थिंक एवरी फैमिली, मोस्ट ऑफ द फैमिली। मेरी खुद की फैमिली, मतलब मेरे डैड को हुआ, मुझको हुआ, एंड इट वाज रियली बैड फॉर अ होल फैमिली। तो बट नेगेटिव न्यूज स्प्रेड करने से क्या मिल रहा है आपको? मतलब व्हाट इज इट?
आप क्यों कर रहे हो, क्या मिल रहा है कि इतने लोग मर गए, इतनी डेथ्स हो गई, वो फोटोज जो पियर्स की थी जो जल रहे हैं, मतलब लोग वो सब स्प्रेड करते हैं। आई डोंट नो, सबका माइंडसेट अलग था उस टाइम पे, जो लोग कुछ करना चाहते हैं। मैं उस टाइम रिफ्रेन करी थी फ्रॉम शेयरिंग एनीथिंग। इनफैक्ट ऑन माय पर्टिकुलर पेज मैं कुछ भी नहीं डाल रही थी, मैं डाल भी रही थी तो कुछ लोग मुझसे कहते थे कोविड हेल्प के लिए कि मैम प्लाज्मा एंड ऑल ऑफ दोस, जो लोगों को इंजेक्शन वगैरह चाहिए, तो वो डाल रही थी। बिकॉज उस टाइम पे मुझे लगता है पॉजिटिविटी का झंडा भी गाड़ना इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज कितने लोग, मेरे को लगता है अगर उस टाइम इतने लोगों के घर में प्रॉब्लम्स थी तो उस टाइम आपके लिए पॉजिटिव रहना मुश्किल है। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप पॉजिटिव नहीं कुछ स्प्रेड कर सकते हो तो नेगेटिव चीजें भी मत करो, refrain from doing that and be neutral, what I feel उस टाइम पे। हाँ, अभी थैंकफुली वी आर डूइंग बेटर, इंडिया थोड़ा बेटर हो गया है, धीरे धीरे थिंग्स विल बी फाइन अनलेस अनटिल आई होप थर्ड वेव ना आए जो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली लेट्स बहुत सारे होप। साइंटिस्ट और बहुत सारे रिसर्च के हिसाब हाँ, से तो यही है कि थर्ड वेव इज इनएविटेबल। तो आने वाला। हाँ, तो वो तो है। तो हाँ, मतलब मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। आई हैव सीन दैट you put out videos on your YouTube channel, you create content for Instagram, you also teach as a professor in symbiosis, you also pursue your PhD. So how do you manage all these things? और आपको ये ख्याल कैसे आया कि हाँ मैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि आप प्रोफेसर हो तो आपके पास क्लास में है मोर देन 100 स्टूडेंट्स, राइट, फॉर एवरी सिंगल बैच। तो फिर भी आपने YouTube स्टार्ट किया, वहां पर भी 5 मिनट वाला कॉन्सेप्ट भी आपका यूनिक है। तो वो आपने कैसे सोचा, वो कैसे स्टार्ट हुआ? अच्छा, सो मतलब फर्स्टली मैं बताना चाहूंगी कि हाउ इट्स एक्चुअली रियल स्टोरी, कोई ऐसा कुक्ड अप नहीं है कि कैसे मेरे को ये 5 मिनट इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया। तो बैक इन 2019 जब मेरा मास्टर्स खत्म हुआ था, आई हैड डन माय मास्टर्स फ्रॉम सिम्बायोसिस ओनली एंड आई नेवर वांटेड टू गो इन अ कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब। एंड मतलब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैं तो प्लेसमेंट्स में भी नहीं बैठी थी, लाइक दे ऑल वर लाइक कि हर्ड कम्युनिटी ना, मास्टर्स हुआ अभी ग्रेड होता है उसके बाद मास्टर्स के बाद जॉब। तो मुझे ऐसा था लेट मी टेक अ ब्रेक। मुझे थैंकफुली आई नेवर हैड एनी फैमिली प्रेशर एनीथिंग फ्रॉम दैट साइड। तो मैं घर आ गई वापस, आई केम बैक टू माय होम टाउन एंड आई वांटेड टू फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू एक्चुअली, लेट मी नॉट जस्ट डू व्हाट अदर्स आर डूइंग। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट व्हाई नॉट गिव एन अटेम्प्ट फॉर यूजीसी नेट, इफ यू नो नेट एग्जामिनेशन जो लेक्चरशिप एंड के लिए होता है। मैंने कहा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, बिकॉज जब मैं अंडर ग्रेड डेज में थी मुझे इको का शुरू से ही पसंद थी। तो किसी और इको ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने देखा बहुत लोगों को उससे नफरत है, लाइक पीपल यूज्ड टू बी लाइक हमें तो बहुत टफ लगता है, और मुझे अच्छा लगता था। तो दे ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी आप हमें ये समझा दोगे, यू नो माय फ्लैटमेट्स और माय ओन फ्रेंड्स बैक इन अंडर ग्रेड डेज में सबको लाइक हेल्प करती थी। तो दे ऑलवेज यूज्ड टू, तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो। तो आई यूज्ड टू बी लाइक अरे ठीक है, मतलब मुझे पसंद है तो आई जस्ट यूज्ड टू टीच। Never had I even had a slightest inkling at that time कि मैं इसको आगे एज अ प्रोफेशन करूंगी। ये तो मास्टर्स के बाद आई थॉट बैक इन 2019 कि चलो एक यूजीसी नेट एग्जाम को अटेम्प्ट देके देते हैं, बिकॉज आई हैड सीन जब मैं मास्टर्स में थी मेरे काफी बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स दे ऑल गिव द नेट एग्जाम एंड आई न्यू हाउ डिफिकल्ट इट इज, बिकॉज ऑनेस्टली तब तक किसी ने भी क्रैक नहीं किया था मेरे पूरे बैच में, और काफी लोगों ने अटेम्प्ट्स दिए थे। तो मैंने कहा कि बट आई वाज सच अ पर्सन, अगर दो तो 100% दो वरना मत दो। That's what I had thought. So I didn't do any job or anything at that particular time. I was only 4 months devoted myself to studying फॉर नेट एग्जाम। नेट एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, जस्ट फॉर दोज हु डोंट नो। एक जनरल पेपर होता है और एक आपका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है। तो मेरा ऑब्वियसली सब्जेक्ट बेस्ड इकोनॉमिक्स था। तो इट्स अ टफ एग्जाम। उसका अगर आप सिलेबस जानोगे तो क्लास 11 इको से लेके पोस्ट ग्रेड लेवल की इकोनॉमिक्स है, सिलेबस बहुत ज्यादा है मतलब उसका। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज श्योर कि मुझे कोई क्लासेस या कोचिंग नहीं चाहिए। आई वांटेड टू परस्यू लाइक ऑन माय ओन। मैंने बुक्स ले ली थी, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से बातचीत करके आई गॉट माय रिसोर्सेज जो थे। एंड ऑनलाइन कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वी ऑल हैव द नेट विद अस। तो इंटरनेट पे कुछ वीडियोस, कुछ टॉपिक्स में जो मुझे प्रॉब्लम होती थी, ऑफ कोर्स मुझे कुछ टॉपिक्स याद नहीं थे, पढ़े तो सभी थे, तो मैं उनको करती थी, लाइक गूगल करती थी। तो जब मैं गूगल करती थी एंड इन्वेस्टोपीडिया है, विकिपीडिया है, उनपे जब आप पढ़ो और एक आप यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देखो, जब आप किसी चीज को सुनोगे तो ऑब्वियसली दैट ग्रास्पिंग पावर आई फील इज मच मोर than when you just read it. आप जब किसी को पढ़ रहे हो आपका माइंड वैसे भी कहीं और कभी चला जाता है, 2 लाइन के बाद you just lose it. But आप वीडियो देख रहे हो, you are more intrigued towards it. तो मुझे एक कॉमन एक बहुत अच्छी चीज भी थी कि YouTube पे काफी टॉपिक्स की वीडियोस थी।
एक प्रॉब्लम जो मुझे लगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो यूट्यूब पे लोगों ने डाले ही नहीं थे, जो डिफिकल्ट मॉडल्स होते कम थे, मतलब वीडियोस उनकी, और थी भी, सो दे वर लाइक वेरी लॉन्ग, दे वर लाइक 30 मिनट्स 45 मिनट्स। अभी आज के टाइम पे किसके पास इतना टाइम है कि 45 मिनट्स एक टॉपिक, और हमारे पास इतने टॉपिक्स होते हैं कवर करने से। ज्यादातर लोग लाइक मी एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही पढ़ने लगते हैं, कोई ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो डेडिकेटेड महीनों रोज पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम से पहले जब इतना सिलेबस अपने को कवर करना है, हाउ डू वी डिवोट सो मच टाइम? सो दैट इज अ वेरी ट्रू थिंग कि उस टाइम मेरे माइंड में आता है, काश कोई ऐसा चैनल होता है जो हर कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में बता दे। एंड इट वाज एक्चुअली दैट व्हाट आई फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ऐसा होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स इट जस्ट केम इन माय माइंड एंड इट वेंट। And then 2020 आया, and 2019 December I cleared the exam luckily, and 2020 I thought that abhi to I'll go for a job. But what happened, we all know, COVID ho gaya March mein, and at that point of time colleges themselves they were not able to cope up with this online structure, because the colleges jo saalon se offline classes le rahe, it was difficult for them to switch to online all of a sudden, right? And so hiring and all was at a pause. So hiring का तो भी कोई scope ही नहीं था, and I was like कि अभी मैं क्या करूँ, I have cleared the exam, अभी mid session चल रहा है, अभी COVID हो गया, how do I go about it? So then what happened to me, I was like, why not, जो मैंने पढ़ते पढ़ते ही माइंड में आया था चैनल का, let's give it a try. Honestly ये रियल स्टोरी है, कुछ उसमें कुकड अप नहीं है। मैंने उस टाइम ऐसे ही सोचा लास्ट ईयर कि ट्राई करके देखती हूँ, तो मुझे काफी टाइम लग गया उस ट्रायल में। मार्च में मैंने ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया था, फिर मैं अप्रैल भर फिगर आउट करी थी। ऑब्वियसली थोड़ा लेजी भी थे उस टाइम पे, वैसे ही कुछ था रही, एवरीवन वाज जस्ट लिविंग द पैंडेमिक लाइफ, कुकिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, rather than actually doing anything productive. Last year तो वैसे ही गया हम सबका। So I thought कि पहले मैंने सोचा कि मैं ऐसे स्क्रीन पे पढ़ाऊंगी, and that's what I thought कि मैं सिर्फ वॉइस ओवर दूंगी, I wouldn't come in the video. But then I thought, why, when you look at someone explaining, आपको खुद अच्छा लगता है, कोई आपको समझा रहा है, फिर आपको कुछ दिख रहा है, सिर्फ बोलने से you can't learn, you have to have something written. तो मुझे लगा कि वो पीपीटी एंड ऑल बड़ा बोरिंग होता है, एनीवे कॉलेजेस में अब वो यूज करते हैं, तो बच्चे ऑल दे आर ऑलरेडी हैविंग अ लुक एट द पीपीटी। तो मुझे लगा व्हाई नॉट हैव अ ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड, उस पे मैं अच्छे से डायग्राम्स भी बना सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ, और लाइक आई कैन कम माई सेल्फ इन द वीडियो, आई डोंट माइंड कमिंग, आई लव टॉकिंग एंड आई लव टीचिंग, तो मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट इज व्हेन लास्ट ईयर इन जुलाई, सो इन जुलाई आई कंप्लीट अ ईयर टू माई चैनल, मैंने 5 मिनट को ऐसे स्टार्ट किया था। एंड टू माई सरप्राइज आई नेवर थॉट इट विल गो दैट गुड। मैंने तो ऐसे एक शॉक में जैसे कहते हैं ना, आई जस्ट स्टार्टेड इट लाइक दैट ओनली। एंड इनिशियली 1 मंथ से मेरे फ्रेंड्स और फैमिली उस पे जाके कमेंट करते थे और मेरी वीडियोस पे व्यू करते थे, बट देन लेटर ऑन इट पिक्ड अप, पीपल स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज मी, स्टार्टेड टू से कि आप इस पे वीडियो बनाओ, यू टॉट मी, बिकॉज ऑफ यू आई अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो आई आल्सो फेल्ट मोटिवेटेड कि चलो देयर इज, इट मींस आई एम डूइंग समथिंग राइट, कुछ अच्छा ही कर रही हूँ जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो अननोन लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑलवेज हेल्प्स यू आउट। So then that is how it came, and then in the month of October November I got the offer for the job from Symbiosis, और साइड बाय साइड ही मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, तो that also happened. So obviously अब ये चैनल अच्छा पिकअप हो चुका था, मैंने 1 महीने बाद पेज भी बना दिया था इंस्टाग्राम पे, तो उससे भी चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिलने लगी। एंड देन आई थॉट ये तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, तो अभी मैं इसको रोक नहीं सकती हूँ कि जस्ट बिकॉज आई गॉट अ जॉब, उस टाइम मैं खाली थी तो मैंने कर लिया। सो दैट इज लाइक टू बी ऑनेस्ट 5 मिनट इकोनॉमिक्स को मैंने अपना ऐसे बेबी टाइप है वो मेरा, इट्स लाइक आई विल कीप गोइंग अबाउट इट। मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, अभी नेक्स्ट वीडियो डालना है, कुछ रील्स डालना है, अभी भी मैंने सोचा हुआ है आफ्टर आई गेट डन विद द इंटरव्यू आई विल पुट 1 रील्स ऑन माय पेज। तो कुछ ना कुछ आई कीप थिंकिंग अबाउट इट, और जॉब मेरी साइमल्टेनियसली चल रही है। पीएचडी का काम आई वुड से थोड़ा आई एम लैकिंग बिहाइंड, तीनों में इफ आई एम डूइंग अ लिटिल लैकिंग इज ऑन माय पीएचडी वर्क, बट वो भी चल रहा है। अभी मेरा कोर्स वर्क खत्म हो चुका है, एंड इन द एंड ऑफ दिस ईयर आई हैव टू सबमिट माय प्रपोजल, so I have time for it. तो इट्स नॉट लाइक आई एम सम सुपर ह्यूमन और एनीथिंग, मैनेज करना बहुत ईजी है अगर आप थोड़ा सा प्री प्लानिंग से चलो। तो मैं 5 मिनट इकोनॉमिक्स का जो भी कंटेंट है सब कुछ 1 वीक पहले एडवांस में प्लान कर लेती हूँ कि मंडे को ये जाएगा पेज पे, ट्यूसडे को ये जाएगा, सो दैट हेल्प्स मी आउट। एंड कॉलेज का काम डेली इट कीप्स हैपनिंग, सो it is not difficult to manage, I would say. If you have the passion for it, आपको करना है तो आप कर सकते हो, it's like that for me. तो आपने जैसे बताया कि आपकी चैनल पे आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो जो टॉपिक्स हैं वो आप कैसे डिसाइड करते हैं? मतलब क्योंकि बहुत सारी थियरीज है, बहुत सारी चीजें हैं, तो सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इंटरकनेक्टेड होता है सब कुछ। मतलब के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट थियरी को एक्सप्लेन किया, तो सेकंड वीडियो जो है वो फर्स्ट के बेसिस पे सेकंड डिसाइड होगा, वैसा होता है? या फिर जो लाइफ साइकिल जैसा? हाँ, तो या फिर
या फिर आपको लगता है कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है तो मतलब वो जो स्कैटर्ड वे में होता है ना कि हाँ डिफिकल्ट जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सबको हम्म। वो कैसे कैसे होता है वो प्रोसेस? तो ऑनेस्टली कोई मैं ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो कर रही हूँ. इनफैक्ट कुछ लोगों ने मुझे बोला भी यू कैन डू दैट टू ब्रिंग इन मोर व्यूअरशिप, बट मुझे ऐसा होता है मेरे मूड के ऊपर है मैं कौन से टॉपिक पे बनाना चाहती हूँ. आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ. जैसे कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा ना मुझसे कि आप जैसे इको में भी फील्ड्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, तो उन्होंने कहा आप अलग अलग एक एक उसकी वीडियो बनाओ. पर मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना मैं बहुत उसमें बनाती हूँ, लाइक आई मेक इट व्हेन आई एम इन अ वेरी गुड मूड. मैं ऐसे नहीं जस्ट फॉर द सेक बनाती हूँ, बिकॉज आई डू इट फॉर माय पैशन. मुझे इतना कुछ उससे उससे मिलता क्या है, मुझे ऑफ कोर्स अच्छी कमेंट्स और व्यूअरशिप मिलते हैं. एक्चुअली अभी मोनेटाइज भी हो गया मेरा चैनल, तो कुछ टाइम में आई विल गेट सम मनी आल्सो, बट दैट इज नॉट द मेन थिंग. मेन थिंग इज कि मैं जो मेरा मन होता है मैं उस पे बनाती हूँ, ऐसा नहीं है. पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है चैनल पे. तो मैंने जो सेग्रीगेट कर देती हूँ वीडियो कि ये इस टॉपिक्स के रिलेटेड, और मैंने कुछ जैसे नेट की प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस बनाई है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो मैंने वो सारी वीडियोस उसमें डाल दी कि लोगों के लिए इजी है. और कभी कदार होता है, जैसे अभी रिसेंट में मैंने एक थ्योरी थी उसके ऊपर बनाया था एब्सोल्यूट एडवांटेज. लास्ट में वो थ्योरी जब वो उसको ना क्रिटिसाइज करके दूसरी थ्योरी आई थी कंपैरेटिव एडवांटेज. तो नेक्स्ट वीडियो मैंने फिर कंपैरेटिव एडवांटेज पे, इफ यू वुड हैव सीन लास्ट वीडियो वही थी मेरी. तो कभी कदार ऐसे लिंक में आ जाता है, but usually it's up to my mood. मैं ऐसा कुछ फॉलो नहीं करती, बिकॉज मुझे ना स्टिक नहीं करना एक चीज पे. लोग भी बोर होए, मैं भी बोर हूँ, मैं इंटरेस्टेड वे में बनाना चाहती हूँ. मैं ठीक है उसको बाद में सेग्रीगेट कर लेती हूँ प्लेलिस्ट के फॉर्म में. मे बी इन फ्यूचर में ऐसा चलूँ चैप्टर 1 देन चैप्टर 2 चैप्टर 3, बट अभी के लिए आई जस्ट डू व्हाट आई फील लाइक. और वो टॉपिक्स ऑब्वियसली जो मैं 5 टू अभी 5 मिनट इकोनॉमिक्स है वो, पर कभी कभी होता है कि 5 में कवर नहीं होता, 8-9 तक पहुंच जाता है. तो विद इन मैक्स 8-9 मिनट्स में मैं जो टॉपिक कवर कर लेती हूँ मैं उसी पे पढ़ाना चाहूंगी. कुछ टॉपिक्स है जो आप नहीं कर सकते 8-9 मिनट्स में, बहुत हैवी मॉडल्स है, तो आई जस्ट रिफ्रेन अभी के लिए. आगे मे बी इन फ्यूचर थोड़ा मैं उसको वर्कआउट करके थोड़ा शॉर्टन अप कर लूं, तो फिर मैं उसको अपने चैनल पे डाल दूंगी. सो दैट्स हाउ आई प्लान माय वीडियोस. तो उसके अलावा आपको कभी ऐसा लगता है जैसे आप अभी आज पढ़ाने गए, ठीक है, और आपको कोई स्टूडेंट ने ऐसे पूछा मैम ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो आपको ऐसा सोचा ओ इस पे भी बना सकते हैं, वीडियो तो ऐसा कभी हुआ है? हाँ. इनफैक्ट यस, इनफैक्ट सो मैं भी क्लास में पढ़ा रही थी, तो मैंने अपनी कुछ वीडियोस भी, नाउ यू नो वर्चुअल क्लासेस चल रही है, एनीवे वी ऑल आर स्टडीइंग ऑनलाइन, तो मैं उनको पढ़ा रही थी जैसे फिस्कल पॉलिसी के ऊपर पढ़ाई थी. तो आई एम लाइक जब मैंने इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाई है, मैं वापस वो चीजें रिपीट करने से अच्छा मैं अपनी वीडियो प्ले कर देती थी. And of course, I used to keep talking and teaching in the middle also, but मैं उनको कह देती कि रेफर करो. And I always used to be like मैं अपना चैनल प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आपको कुछ और भी चैनल से देखनी है आप देख सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छा पढ़ाया है and others have liked it, so I of course help my students. और उसी के बाद how you asked me कृणाल, कभी कभी ऐसे भी हुआ जब मैं पढ़ाते सुनी थी अरे ये टॉपिक अच्छा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई वाज अ गुड टॉपिक, और पढ़ाने के बाद मैंने फिर वीडियो बनाई. सो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन रेफर टू इट. अभी के लिए तो सेमेस्टर खत्म हो गया, तो दैट्स देयर. अभी तो मुझे लगता है इजी है, जो मैं पढ़ा रही हूँ कंटेंट इज इन माय माइंड, जाके बस मुझे वीडियो बनानी है. इट्स लाइक दैट. और मुझे ये भी एक बहुत फैसिनेटिंग पॉइंट लगता है जो मुझे पूछना है कि जैसे हमें होता है कि अगर हम यूआई डिजाइनर और सब मतलब हम हमारा काम डिजाइनिंग का मार्केटिंग का ये सब है, तो अगर हम सोचते हैं ना तो हम हर जगह पर हमें ये दिखता है, अगर कोई प्रोडक्ट है या कुछ है तो हमें डिजाइन दिखेगी कि इसमें ये सही है ये सही नहीं है. वैसे ही मार्केटिंग के कैंपेन में भी हमें दिखेगा कि यहाँ पर ये सही चल रहा है तो ऐसा कर सकते हैं. तो आपके दिमाग में ऐसा होता है कि हर जगह पर जहां पर भी गए तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ होता है आपको? हाँ अमित, आपको ऐसा होता है कि आपने टैग देखा और आपने खुद कैलकुलेट करना शुरू कर दिया इसी कॉस्ट प्राइस ये है. I have a life apart from economics also. मेरा दिमाग perpetually economics में नहीं रहता. In fact, you will know me more. I am a very chilled out person. ऐसा नहीं, मैं अपने students को भी कहती हूँ, लोग इतना stress लेते हैं, मैम एग्जाम या कुछ ऐसे, मैम कैन यू लाइक हेल्प मी आउट. मैं उनको कहती हूँ रिलैक्स, लाइक चिल करो, अभी अंडरग्रेड में हो, इतना क्या पढ़ोगे, लाइक एंजॉय लाइफ. तो मेरा दिमाग पूरा टाइम इकोनॉमिक्स से नहीं, पर ऑफ लेट आजकल मेरा दिमाग पर चल रहा है रील्स के लिए. तो मैंने पीछे एक रील्स बनाई थी एमआरपी के ऊपर, जो बहुत लोगों को पसंद आई थी, क्योंकि उसमें पता ही नहीं था लोगों को कि बाहर कंट्रीज में एमआरपी नहीं है. तो ऐसे कॉन्सेप्ट में सोचती रहती हूँ, मतलब नॉट लाइक यू पूरा टाइम इकोनॉमिक्स, जैसे हाउ यू वर सेइंग पूरा टाइम डिजाइन मेरे दिमाग में चलता है, बट हाँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अच्छा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, मैं इस पे रील्स बनाऊंगी, यू नो ये ऑडियंस को पसंद आएगा. तो वो मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत अब चलने लग गया है थोड़ा रिसेंटली में.
नहीं पकड़ मतलब लिया। होता है ना कि You अगर are कुछ right. भी कुछ भी न्यूज पढ़ते हैं या कुछ भी कहीं पर भी गए तो हमारे दिमाग में हाँ अभी ये हो रहा है ना तो इसके बाद की इवेंट ये हो सकती है या फिर ये कंट्री ये ऐसे रिएक्ट करेगी, वो सारी चीजें होता है ना थोड़ा वैसे। बहुत, हाँ, ऑफ कोर्स। मीन्स आप किसी हमारी चीज स्टोरी लाइन में, शुरू हो जाती है। हाँ वही। स्टोरी लाइन, आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा डेप्थ में घुस जाओगे तो 24 घंटे फिर आपके दिमाग में वो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। हाँ तो समटाइम्स व्हेन आई फील कि इको मॉडल्स तो नहीं, क्योंकि वो चैनल पे रहते हैं, पर पेज के लिए मैं कोई फन कंटेंट भी ढूंढती रहती हूँ। तो मैं सोचती, अच्छा इस गाने पे मैं अपना एक वीडियो बना लूंगी, फन रील्स बना लूंगी, मतलब ऐसी चीजें दिमाग में हाँ चलती रहती है जो like of course it's good also, you are always productive that way. I think new ideas, creative ideas दिमाग में आते रहेंगे अगर आप ऐसा सोचोगे तो। Thank you guys for watching the first part of this episode. We hope that you really like this first part. It was quite interesting for us, so that we have divided this episode into two different parts. We'll upload the second part of this episode really soon. So stay tuned to our social media handles where we'll announce where the second part is about to come. So yeah, like, share, and subscribe to this channel, and stay tuned to for further updates.